एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਪਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਇਐ,
आगे करो बेनती जे गुर पावे जो मिले तिवें मिलाए मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने आपे मेल ले सुख दाता आप मिलिया कर आए आपे मेल ले सुख दाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना पिर मरे न जाए नानक कामन सदा सुहागन ना पिर मरे न जाए मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने नैनड़ी नींद न आवे जियो नैनड़ी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पानी मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन करे निमाने ऐसा मीत करो सब कोए मीत करो सब कोए ऐसा मीत करो सब कोए मीत करो सब कोए ऐसा मीत करो सब कोए मीत करो सब कोए हाँ ऐसा मीत करो सब कोए मीत करो सब कोए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मित्रता कैसी हो,
मित्रता का उदाहरण दिया है यहाँ पर। आपके यहाँ पास में ही, शोलापुर के पास में ही बारसी जगह है। बारसी, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु लोगों को पता होगा। यहाँ पर ऐसा एक स्थान है जहाँ पर दास ने दर्शन किए, जहाँ पर भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन जी बैठकर विचार किया करते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी। मित्रता क्या कर सकती है? अगर किसी संत की मित्रता हो जाए, नाम जपने वाले की मित्रता हो जाए, इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है। जन्मों का जो तप करके हासिल करनी है जिस चीज को, पता नहीं वो हो गया ना हो, फिर भी पर अगर किसी संत की मित्रता, नाम जपने वाले की हो जाए मित्रता, वो तत्क्षण में वो चीज प्राप्त हो सकती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसका उदाहरण है भगत नामदेव जी, भगत त्रिलोचन जी की मित्रता। आपने कई शब्द सुने होंगे, नामा कह त्रिलोचना मुक्त राम समाल, हाथ पांव कर काम सम चित निरंजनाल। ये भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव जी से सवाल पूछा करते थे, क्योंकि भगत नामदेव जी को प्राप्ति हो चुकी है, पर भगत त्रिलोचन जी को नहीं हुई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी बहुत धनवान बताए गए हैं इतिहास में, बहुत धनवान थे। और भगत नामदेव जी सबको पता ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मित्रता, क्योंकि वो पहुंच चुके थे, भगत त्रिलोचन जी ने भगत नामदेव जी से मित्रता की। अत के अमीर आदमी ने अत के गरीब आदमी से मित्रता, किस लालच में? क्योंकि ये पहुंच चुका है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इस बात को भाई गुरदास जी अपनी वारों में दर्ज करते हैं। इस घटना को श्रवण कीजिए, एक एक पंक्ति को श्रवण कीजिए कि मित्रता करती क्या है, नाम जपने वालों की मित्रता। दर्शन वेखण नाम दे, पल के उठ त्रिलोचन आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्शन वेखण नाम देव, पल के उठ त्रिलोचन आवे। एक एक पॉइंट को नोट करना साथ संगत। क्या लिखा है? दर्शन देखण नाम देव, पल के उठ त्रिलोचन आवे। नामदेव जी के दर्शन करने लिए त्रिलोचन जी आते कब? भल के उठ, अमृत वेले, रात को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। शाम को, दोपहर को नहीं, भल के उठ, अमृत वेले उठ के जाते हैं। इसका मतलब नामदेव जी अमृत वेले उठते थे, भगत त्रिलोचन जी अमृत वेले उठते थे। जिन्होंने पाया है, कई लोग आज के जमाने में कहते थे जब भी उठो तभी अमृत वेला, जब भी नाम जपो तभी अमृत वेला। दुकान में भी रात को चले जाया करो, जब बैठो तभी दुकान चले जाया करो, रात को 12 बजे दुकान खोल के बैठ जाया करो। अपनी मत, इसे कहते हैं अपनी मत। एक होती है गुरमत, एक होती है अपनी मत। जब माथा टेकते हैं, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, माथा टेकने का मतलब क्या है? जब माथा टेकते हैं अंदर से एक पुकार निकले, पाछा अपनी मत दे दे, मेरी गुरमत ले ले, मेरी दुर्मत ले ले, गुरमत दे दे। मेरे भीतर जो दुर्मत, दुर्मत किसे कहते हैं? शराबियों के पास होती है, मांस खाने वालों के पास होती है। उनके पास कई तर्क होते हैं अपने मांस खाने के लिए, शराब पीने के लिए। इसे कहते हैं दुर्मत के तर्क करना। बाणी साफ कह रही है कि शराब नहीं पीनी है। जित पीते मत दूर होए, बरल पोया विचाए, अपना पराया न पछाने ही, खसमो तके खाए, मत पी शराब। पर शराबी अपने तर्क देते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ था, 14 रत्नों में से एक शराब निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके अपने तर्क होते हैं। बाहर के देश में लोग पीते फलाने, ये तर्क कौन देते हैं? दुर्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी 1000 जगह पे कह रही कि अमृत वेले उठो, चालागे उठ नाम जप, पहले पूरा फल भी पच्छा रात, पिछली रात में फल मिलेगा, पिछली रात चौथा पहर रात का 3 से 6। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम अपने तर्क देते हैं, जब भी उठे तभी अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक अपने तर्क देंगे कुछ हासिल नहीं होगा साथ संगत जी की, तब तक दुर्मत है। एक बात मेरी मान लो, जो खाते और पीते हैं, अगर नहीं रह जाता है ना पिए बिना खाए बिना, गुरबाणी को मत किंतु परंतु करो। ये कह दो कि मुझसे नहीं रह जाता, मेरी जबान का स्वाद है। कोई कहे ना कि मांस खाना छोड़ दो, अब नहीं छूट रहा, तो को गुरु को अरदास करो, मुझसे नहीं छूट रहा, मुझे पता है गलत है। ये कहना गुरु की नजरों में उठ जाओगे, बख्श देगा। पर कोई ये कहे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खाते थे, अपनी तरफ से तर्क दे, वो तो उसे तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु पे उंगली उठा दो अपने गुनाह को छुपाने के लिए, उसे कैसे बख्शा जाएगा?
मांस के ऊपर तो इतने प्रमाण है, इतने प्रमाण है, पूरा प्रकरण ही अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे। बात बीच में आ गई, पल के उठ त्रिलोचन आवे। भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन जी भगत करन मिल दोय जने, नामदेव हर चलत सुनावे। जब भगत त्रिलोचन जी नामदेव जी को मिलते हैं तो नामदेव जी भगत त्रिलोचन जी को बताते हैं कि कल भगवान मिले थे, क्योंकि भगत नामदेव जी को बार बार दर्शन होते थे भगवान के, जब वो चाहते थे। ऐसी अवस्था हो गई थी उनकी, और ये सारे दर्शनों का प्रसंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। शुक्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये सब दर्ज हो गया, नहीं तो आज के लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन कि प्रत्यक्ष दर्शन होते ही नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। गुरु के दर्शन नहीं होते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन क्या है? ध्यान, एक एक चीज को ना ध्यान से सुना करो, क्योंकि हमारे सुनने में गलती है। जब सुनते गलत हैं तो समझते गलत हैं। क्या कहती है वाणी? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आखिरी वचन क्या थे? आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो क्या था? क्या था? क्या मान्यो? गुरु शब्द। क्या कहा था? शब्द गुरु। परगट गुरा की देह, देह किसे कहते हैं? शरीर को। गुरु ग्रंथ जी मान्यो परगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल खोज, वो चाहे खोज शब्द में ले, खोजना शब्द में है, सुरती शब्द में जोड़नी पड़ेगी, पर सेवा देह जानकर करनी पड़ेगी। अगर शब्द है तो चौर सब करने की क्या जरूरत है? ये देह है, तब तो चौर सब कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मानो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ जी मानो परगट गुरा की देह, देह जानकर सेवा करो, देह जानकर सेवा करो कि ये देह है, ये गुरु नानक बैठा है, ये फीलिंग लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, जिस कलर का रुमाला साहब हो, मन में फीलिंग लाओ कि यही कपड़े की पोशाक पहनकर गुरु नानक पातशाह बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्यार वालों की बातें हैं, प्रेम वालों की। कट्टर तो इन बातों को उसी वक्त रद्द कर देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी त्रिलोचन जी को बता रहे हैं कि कल भगवान मिले थे, ऐसे दर्शन हुए, ऐसी बातें हुई। त्रिलोचन जी के मन में भी बार बार सुनकर प्यास जागती कि भगवान कैसे दिखते होंगे, मुझे भी दर्शन होंगे कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत करन मिल दो जने, नाम देव हर चलत सनावे। फिर आगे क्या कहते हैं? अब त्रिलोचन जी एक दिन कहते हैं, मित्र है ना नामदेव जी, मित्र से कहते हैं, मेरी भी कर बेनती, मेरी भी कर बेनती, दर्शन देखा जे तिस पावे, ठाकुर जी ने पूछियो दर्शन किवे त्रिलोचन पावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी ने हाथ जोड़ दिए, नामदेव जी ये मेरे मित्र है नामदेव, कि मुझे भी कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। ठाकुर को कहना, आप तो रोज मिलते हो, कि मुझे भी दर्शन दे दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मित्र से हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, किससे? मित्रता हो। और ये तो सच्चे मित्र भगत नामदेव जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। त्रिलोचन जी कहते हैं नामदेव जी से कि मेरी भी कर बेनती, मेरी बेनती का ठाकुर से कि मुझे भी दर्शन दे दे। और अगले दिन जब नामदेव जी भगवान को मिलते हैं अमृत वेले, तो बेनती करते हैं पातशाह, क्योंकि नामदेव जी भगवान को प्रसाद खिलाते थे रोज अपने हाथों से बनाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, धन्य का पत्थर खा सकता है तो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं खा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर समझाते थे, पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे भगवान, पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो नामदेव जी ठाकुर से कहते हैं,
हे ठाकुर, मेरा मित्र है त्रिलोचन, उसे भी दर्शन दे दे। और उसने पूछा है कि क्या भेंटा रखूं मैं आगे जिससे आप मुझे दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि भगत त्रिलोचन जी बहुत ज्यादा धनवान थे, तो उन्होंने नामदेव जी से कहा था कि पूछना कि मैं कितनी भेंटा रखूं कि मुझे दर्शन देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान ने क्या कहा, श्रवण कीजिए। हंस के ठाकुर बोलिया, वारा भाई गुरदास जी, ये मैं नहीं लिख के लाया हूं, ये मेरी लिखी हुई नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी, जिनकी वारों को कुंजी का खिताब दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वर दिया है भाई गुरदास जी की वारों को। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझना है, पहले भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है भाई गुरदास जी ये लिख गए, नहीं तो लोग कहते हैं मन अपने मन की कहानियां सुना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति कह रही है, श्रवण कीजिए। हंस के ठाकुर बोलिया, नाम देव नो कह समझावे, हाथ नावे पेट सो, तुस कर लोचन मैं मुहलावे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक बात लिखी है डिटेल में। हंस के ठाकुर बोलिया, हंसे ठाकुर हंस पड़े जब ये बात सुनी ना कि त्रिलोचन जी कहते हैं कितनी भेंटा आगे रखूं तब दर्शन होंगे, तो हंसे ठाकुर जी। कहने लगे त्रिलोचन से कहना हाथ ना आवे पेट सो, कि मैं भेंटा देकर हाथ में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं भेंटा लेकर हाथ में नहीं आता। और यहाँ पर दास एक बात खोल के बता दे सारी संगत को, चाहे आप करोड़ों नाम करोड़ों बार सब्जी का पाठ कर लो, करोड़ों सुखमनी साहिब जी का, तब भी वो हाथ में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अगर इतने पाठ करने से वो मिल गया, ऐसा हो गया, तो फिर तो उसकी कीमत हो गई, वो उसकी तो कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये पाठ करने क्यों है, नाम जपना क्यों है? ताकि उसे तरस आ जाए। एक आदमी रोड पर मजदूरी कर रहा हो, आप अंदर एसी में बैठे हो, उसे देखकर पूरा दिन देखते रहोगे, आपको तरस आ जाएगा। जब अमृत वेले उठेंगे, नाम जपेंगे, भक्ति करेंगे, वो आपको मेहनत करते देखेगा, उसे तरस आ जाएगा। उसे मिलाएगा केवल तरस। जपना इसलिए है कि उसे तरस आ जाए। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी कीमत नहीं पाई जा सकती, वो बेशकीमती, कोई कीमत नहीं उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हथ न आवे पेट सो, तुस त्रिलोचन मैं मुलावे। कहने लगे मैं उस वक्त त्रिलोचन को मिलूंगा जब मेरा मन मानेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब हमें लगेगा कि मिलना चाहिए। जब ये बात अगले दिन जाके नामदेव जी ने त्रिलोचन को बताई तो त्रिलोचन रो पड़ा, चरणों में गिर पड़ा नामदेव जी के। कहने लगा मैं बेटा से वो बस में नहीं आता, वो उसका मन कब मानेगा, कब वश में आएगा। तू मेरा मित्र है, तू बेनती करना मेरी भी कर बेनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि मुझे दर्शन दे दे। नामदेव जी ने ठाकुर को बुलाया। नामदेव जी ठाकुर से बातें कर रहे हैं, भगत त्रिलोचन जी पास में खड़े हैं, उन्हें नहीं दिखाई दे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत त्रिलोचन जी रो रहे हैं, चरणों पे गिरे हुए नामदेव जी के। नामदेव जी ठाकुर को बेनती करे, पातशाह ठीक है, बेटा से नहीं बस में आता, मेरे कहने पे आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ठाकुर जी कहने लगे नामदेव त्रिलोचन की अवस्था नहीं है, ना ही उसकी इतनी कमाई है, ना ही उसकी तेरे जितनी श्रद्धा है, ना ही तेरे जितना उसमें भोलापन है। मैं नहीं उसे दर्शन दे सकता। उसकी वो अवस्था ही नहीं है कि उसे दर्शन मिल जाए। कई जन्मों की भक्ति करनी पड़ेगी उसे। पर भगत नामदेव जी कहते हैं ठाकुर से, हे ठाकुर मेरे लिए, ये मेरा मित्र है, ये पूरा लिखा हुआ है साध संगत जी कि मेरा मित्र है, मेरे लिए तू इसे दर्शन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। हाँ अधीन हाँ भगत दे, पहुंच न हंगा भगति दावे, होए विचोलान मिलावे, होए विचोलान मिलावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठाकुर कहने लगे मैं हर काम कर सकता हूँ,
हर काम, पर एक काम मुझसे कभी नहीं हो पाया कि अपनी भगत की बात को टाल दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। ना त्रिलोचन की अवस्था है, ना त्रिलोचन के पास वो ज्ञान है, ना वो कमाई है, पर केवल तेरे कहने पर नाम दे, क्योंकि मैं भक्तों की बात नहीं टाल सकता, मैं उसे दर्शन देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। और एक ऐतिहासिक घटना है, भगत त्रिलोचन जी को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए केवल नामदेव जी के कहने पर क्यों? आखिर में भाई गुरदास जी लिखते हैं, होए विचोला आन मिलावे। आपको प्रधानमंत्री से मिलना है, मिल के दिखाओ। जब तक कोई आपका सही लिंक नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई पहचान नहीं है, जो कोई बिचौला नहीं है, आप नहीं मिल सकते। किसी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, किसी मंत्री से नहीं मिल सकते, और अगर सही आपके लिंक हैं तो मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। प्रभु से मिलने का सही लिंक है संत, नाम जपने वाला, गुरमुख, गुरसिख। पातशाह कहते हैं ऐसे को अपना मित्र बना। जन्मों की कमाई करके जो तू हासिल नहीं कर पाएगा, अगर तूने ऐसे को मित्र बना दिया, प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको, ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको, जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सबको, जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सबको, ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको, ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक थोड़ा सा दूसरा पहलू ले ले इस बात का, बड़ी ध्यान से सुनना साथ संगत जी। अब ये विशेष बात है, हम बात कर रहे हैं मित्र कैसा हो। पातशाह समझा रहे कि गुरु नानक को मित्र बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, अब जो बात है ना बहुत सुनने वाली, समझने वाली है। हम चाहते हैं हमारा मित्र ऐसा हो जो दुख में हमारा साथ ना छोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जो बात हम अपने मित्र से अपेक्षा करते हैं, क्या मित्र हमसे अपेक्षा नहीं करेगा वो बात की? बड़ी ध्यान से समझना। जब हम गिने कुछ और अपने आप को गिनती में गिने ही ना, गिनती करें तो मूर्खता ही होगी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5 लोग खड़े हों, गिनने वाला बोले 4 हैं, अपने आप को गिने ही ना, मूर्खता ही है। हम कह रहे हैं कि मित्र ऐसा हो जो दुख में हमारा साथ निभाए, पर क्या हम साथ निभाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हम चाहते हैं गुरु नानक हमारा मित्र बने, हम चाहते हैं संत हमारे मित्र बने, नाम जपने वाले मित्र बने, तो जो अपेक्षा हम उनसे रखते हैं वो अपेक्षा वो भी तो हमसे रखते हैं। दुख में हम उन्हें छोड़कर दूसरे के दर पे चले जाएं, बात को समझना। हम चाहते हैं गुरु नानक को अपना मित्र बनाए, हम यही चाहते हैं गुरु नानक मित्र बन जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज, भगत कबीर जी यही समझा रहे हैं कि गुरु को मित्र बना ले, जो यहां भी तेरा साथ दे वहां भी साथ दे, पर गुरु भी तो हमसे कोई अपेक्षा रखता है। हम चाहते हैं दुख में वो हमारे साथ खड़ा रहे,
तो क्या वो नहीं चाहेगा कि दुख में ये भी खड़ा रहे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु जब हमारे पे दुख आते हैं हम क्या करते हैं? कोई आके कहीं फलाना बाबा आया है, वो दुख दूर कर देगा, अपने गुरु को छोड़कर चलो भाई बाबा के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम उस मित्रता के काबिल हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर कमाल की बात है, गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में समझा रहे हैं। श्रवण कीजिए ध्यान से साथ संगत जी, ये शब्द जो पढ़ रहे हैं हम। अपने लोभ को तीनों मीत, सगल मनोरथ मुकत पद दीत। अपने लोभ को कीनो मीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत। अपने लोभ को कीनो मीत, ध्यान से सुनना। गुरु नानक जानता है कि हमने उसे मित्र बनाया है अपने लोभ के कारण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप से पूछकर देखिए यहाँ पर क्यों बैठे हैं। किसी ने कहा होगा चलो कुछ मिलेगा, तकलीफ है दूर हो जाएगी, दुख है दूर हो जाएगा, धंधा चल जाएगा, संगत में बैठेंगे। हम हर आदमी यहाँ किसी ना किसी लालच में बैठे है। 10 रुपए गोलक में डाले हैं तो 1000 की इच्छा है, लाख की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक हमें पता चल जाए ना कि हमारा मित्र लोभी है, मतलबी है, हम उस वक्त मित्रता तोड़ देंगे। गुरु नानक जानता है कि हम लोभ की वजह से उसे अपना मित्र बना रहे हैं। अपने लोभ को कीनो मीत, हमने लोभ के वश में होके कि हमें कुछ मिलेगा, इस लालच में उसे अपना मित्र बनाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते देखिए कितने कमाल का मित्र है। वो ये जानता है कि हम लोभी हैं, मतलबी हैं, फिर भी सगल मनोरथ मुकत पद दीत, फिर भी वो देने से नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी मित्रता निभाता है। ऐसे को मित्र बनाओ, बात को समझो। वो जानता है कि हम लोभवश यहाँ बैठे हैं, कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद में, नहीं मिलेगा टूट जाएंगे, फिर भी वो देता है। गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। अपने लोभ को कीनो मीत, फिर भी सगल मनोरथ मुकुत पद दीते। ऐसा मीत करो सब कोय, जानते बिरथा कोई ना होए। ऐसे गुरु नानक को अपना मित्र बना ले जिसके दर से कोई खाली वापस नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। अपने सुवार दे तारया, दुख दर्द रोग सगन बिदारया। अपने सुवार दे तारया, दुख दर्द रोग सगल बिदारया। अपने सुआए हृदय ले तारया, अपने स्वार्थ के लिए हमने उसे अपने हृदय में बिठाया है। हम गुरु नानक को अपने हृदय में, अपने गुरु को अपने हृदय में क्यों बिठाते हैं? कि कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के वचन याद आ जाते हैं कि संगत में 70-70, 80-80 साल के बच्चे देखे हैं। बच्चे क्यों? बच्चा स्कूल में नहीं जाता तो क्या कहते हैं हम? चॉकलेट मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चॉकलेट मिलेगी, स्कूल चला जा। हम भी बच्चे हैं, आज भी सत्संग में जाते कहते हैं ना कि अमृत वेले उठो, क्या मिलेगा? ये नहीं कहते हैं कि गुरु नानक ने कहा है, गुरु नानक की खुशी के लिए हुक्म है, गुरु का मानना है। क्या मिलेगा? एक छोटा बच्चा स्कूल जाने के टाइम कहता है क्या मिलेगा? हम बूढ़े कहते हैं अमृत वेले उठने के लिए जाओ, सत्संग में चलो, तो क्या मिलेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक जानते हैं हम स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए बैठे। हमें पता चल जाने हमारे मित्र स्वार्थी है, उसी दिन उसे छोड़ देंगे। गुरु नानक जानता है हम स्वार्थी हैं। वाणी कह रही है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जानता है अपने स्वाय हृदय लय तारया, हमने अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने हृदय में बसाया है। फिर भी दुख दर्द रोग सगल विदारिया, गुरु नानक फिर भी हमारे सारे दुख दर्द रोग दूर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा उम्मीद करो सबको। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं दुनियावी मित्रों को छोड़, गुरु नानक को अपना मित्र बना ले। तू स्वार्थी है, तू लालची है, हम स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, फिर भी गुरु नानक हमारी मित्रता अपनी निभाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रसना गीधी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। रसना गीधी, गीधी का भाव होता है आदत। जिस रसना को, जिस जबान को वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम बोलने की आदत पड़ गई,
वाणी कह रही है जिस रसना को ये नित्यनेम करने के लिए क्यों कहते हैं 13 माला मूल मंत्र 26 माला मूल मंत्र, क्यों? आदत पड़ जाए इसे। ये बार बार प्यार से बोलो धन गुरु नानक, क्यों? आदत पड़ जाए इस रसना को, क्योंकि वाणी कहती है जिस जबान को उसका नाम लेने की आदत पड़ जाए, रसना गीधी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम, वो इंसान मन में सोचेगा बाद में उसके काम पहले पूरे हो जाते हैं। ये वाणी की ताकत है साथ संगत जी। एक बार करके देखो हट से, आप सोचो के बाद में ये 9 निधि 18 सिद्धि क्या होती हैं। आप जो सोचो आपके सोचते ही वो सब होना शुरू हो जाता है, शक्तियां काम करने लग जाती हैं। गुरु नानक की प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लोग कहते हैं हमारे धंधे नहीं चलते हैं, अगर नाम साथ में हो, बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जो अमृत वेले उठता हो मिट्टी में हाथ डाले तो भी सोना होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इतनी संगत बैठी है, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा मीत करो, गुरु नानक को मित्र बना लो। चाहे हम स्वार्थी हैं, चाहे लालची हैं, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दयानिधि दोख न देखत है पर देत न हारे। वो देख रहा है कि हम गुनाह कर रहे हैं पर देने से नहीं हटता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किसी को गुनाह करते देख ले नफरत हो जाती है उससे, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उसको खाना देना तो दूर की बात रहे, पर गुरु नानक हमारे गुनाह देखते हुए भी हमें दे रहा है। ऐसे को मित्र बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कच्चड़ियां से तोड़ टूंड सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया ना जाए छोड़। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको, ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। जाते बिरता कोई न होए, जाते बिरता कोई न होए, मीत करो सबको। जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सबको। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए समय तो बहुत हो चुका है, पर अगर संगत प्यार दे, सारे हाथ खड़े करके कहें कि नहीं उठेंगे, जकारा बुलाएं, तो दास आगे बढ़े। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ऐसे बैठने के लिए मना किया है, मुझे पैर में प्रॉब्लम हो गई है कुछ, वो तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, पर संगत का इतना प्यार देख के मेरा भी उठने का दिल नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इतना संगत प्रेम देती है ना, और मैं देखता हूँ कि एक प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए खर्च हुए हैं, तो मेरी कोशिश होती है जितनी देर बैठा जा सके ताकि किसी को कुछ मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर संगत अगर प्यार दे तो गुरु भी ताकत दे देता है। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है इस बात को समझने के लिए कि अगर गुरु नानक को मित्र बना लिया, खुदा को, भगवान को अपना मित्र बना लिया, उससे प्रेम पैदा कर लिया, नित्यनेम संभाली, उससे मित्र कैसे बनती है? नित्यनेम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातें करने से वो मित्र नहीं बनता। मित्रता कैसे बनती है? बड़े ध्यान से जरा विचार किया करो, कॉमन सेंस की बात है। कौन सा मित्र हमें अच्छा लगता है? जो हमारी बात माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो हमारी बात मानता है वो हमारा मित्र बन जाता है, सिंपल सी बात है। जो बात नहीं मानता वो हमें नहीं अच्छा लगता, उससे हम दूर हो जाते हैं। गुरु नानक की बात जो मानेगा वो उसका मित्र, गुरु नानक उसका मित्र बन जाएगा। गुरु नानक कहते हैं अमृत वेले उठो
गुरु नानक उसका मित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उदाहरण आया भाई गुरदास जी की वारों में। राजा अम्बरीक हुआ है, त्रेते युग की घटना है, त्रेते युग की बड़ी कमाल की घटना है। राजा अम्बरीक हुए हैं, एक ऐसे राजा हुए जैसे जनक राजा का कितना नाम है, वाणी में जनक राजा की बड़ी उस्तत की गई है। क्योंकि राजा, जब राजा एक ताकत होती है साथ संगत जी, राजा एक वो अदा होता है कि जो चाहे इंसान कर ले, और वाणी कहती है कि जिसके पास ताकत आ जाए वो गलत काम ही करता है। कोई विरला होता है राज में जोक कम आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वरना तप करके राज मांगता है इंसान, राज से फिर नरक। तपो राज, राजो नरक। पर तप से राज और राज में जोक कमाना कोई विरला होता है। उन विरलों में गिनती आती है राजा अम्बरीक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी अपनी वारों में लिखते हैं अम्बरीक राजा हुआ है, और उसका नेम था कि हर संतों महापुरुषों की संगत करते रहना। और उस संतों महापुरुषों की संगत की वजह से उसका आधी रात को जागकर वो सिमरन में बैठ जाता था। कृष्ण जी का भगत था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विष्णु भगवान का भगत था वो राजा अम्बरीक। आधी रात को बैठकर नाम जपता था, तो विष्णु भगवान उसके मित्र बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। साधु संतों की सेवा करता था। तो एक समय आया साथ संगत जी उसका। आइए साथ साथ में पंक्तियां सर में कर ले ताकि समझ में आ जाए बात। भाई गुरदास जी अम्बरीक मोहे वर्त है, रात पई रात पई, रात पई दुर्बसाया, रात पई दुर्बसाया। पीड़ा उस उपारणा ओ उठ नावन नदी सिधाया। राजा अम्बरीक, राजा अम्बरीक का नेम था कि वो एकादशी का व्रत रखा करता था। बात को जरा ध्यान से यहां पर समझ ले, छोटी छोटी बातें बीच में आती हैं। ये व्रत, नेम, पूजा, यज्ञ, होम, गुरबाणी कहती है इनका फल है, इनका फल था त्रेते युग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कल युग है, कल युग में केवल नाम, केवल नाम। ये सब त्रेते युग में, द्वापर में इन सब चीजों का फल था। पर जिसका जो धर्म है उसे मानने की छूट है, जो जिस धर्म को माने उसे परवान है। गुरु महाराज ने व्रत रखने को सख्त मनाही की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह घटना है त्रेते युग की। राजा अम्बरीक व्रत रखता था एकादशी का, और उसका स्वभाव था, उसका एक नियम था कि व्रत तोड़ता जब था ना, किसी संत महापुरुष के हाथ से कुछ ग्रहण करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्रसाद ग्रहण करके वो व्रत तोड़ता था। एकादशी का व्रत रखा है, राजा ने सारे नगर को बुलाया गया। राजा जी व्रत तोड़ेंगे और सब बैठकर प्रसाद खाएंगे। महापुरुष सारे बुलाए गए। उस वक्त अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि सबने, शायद बहुत लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, बड़े ही तामसी स्वभाव के थे। वो ऐसे एक ऋषि थे, ना उनके पास कोई जाता था, वो जहां चले जाए लोग डर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम इतने क्रोधी स्वभाव के कि शराब उनकी रचना पे रखा रहता था, कोई गलती करे कोई उसे शराब दे देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी खलकत डरती थी दुर्वासा ऋषि से। अचानक वो आ गए, पर ये अम्बरीक उन्हें देखकर नाराज नहीं हुआ, घबराया नहीं, प्रसन्न हुआ कि इतने बड़े ऋषियों में ऋषि गिने जाते थे। वो कमाई याद की थी। पर कमाल की बात है साथ संगत जी, एक बात छोटी सी यहाँ पे समझा दे दास, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के जमाने में। शराब किसे कहते हैं, शराब होता क्या है और शराब देने से क्या होता है, एक बात बड़ी ध्यान से समझना। आपको कोई आदमी बहुत दुखी कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपके साथ नाजायज कर रहा है। आप कहते हो कि
भगवान को अरदास करते कि इसका सत्यानाश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये आपके हृदय में से निकलता है। आप किसी को कह देते हो कि तेरा ऐसा होगा। एक बात याद रखना, ऐसा कहना बड़ा आसान है, पर ऐसा कहने से सामने वाले पे हो भी जाए, आपका कुछ नहीं रहने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी आपने छोटे मोटे पुण्य एकत्रित किए होते, नाम जप के, अमृत ले उठ के, अगर आप दूसरे को जब बद आशीष देते हो, वो सब उसमें खर्च हो जाते हैं। बात को समझना। किसी को कुछ कड़वे लफ्ज कहने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। 1 2 बार 10 बार नहीं, दास कह रहा, 1000 बार। एक तो हमारी कमाई है नहीं, ऊपर से बदशीशा दे दे के माइनस में चल रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कई लोग संतों की आशीष से डरते हैं, बद आशीष से डरते हैं। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। बाबा नंद सिंह जी के वचन कि संत से घबराया मत करो, क्योंकि पूर्ण संत होगा तो शराब देगा ही नहीं, अधूरा होगा तो उसका लगेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कहते थे महापुरुषों की संगत करो, शराब से मत डरो, उनके गुस्से से मत डरो, क्योंकि उनके ताड़ना में भी तारना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डांटते भी है तो उनकी डांट में भी तुम्हारा उद्धार होगा, महापुरुषों की संगत। पर दूसरी बात कहते थे डरो तो किसी गरीब की बद्दुआ से, नाजायज करते वक्त डरो। जब तुम किसी गरीब के साथ नाजायज करते हो जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जब वो रो देता है ना। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, वचन लिखे हुए हैं उनके कि गरीब को मत सता वो रो देगा, गरीब को मत सदा वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा, तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डरो किसी गरीब की बद्दुआ से। जब उसे बेमतलब आप किसी को परेशान करते हो, किसी गरीब को जिसका बस नहीं चलता आपके ऊपर, वो कुछ कर नहीं सकता, बदला नहीं ले सकता, जब उसके हृदय से पुकार निकलती है ना, बर्बाद करके रख देती है बड़ों बड़ों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दुर्वासा ऋषि से सब डरते हैं कि ये शराब दे देते हैं छोटी सी भूल से, और उन्हें शराब देने का शौक भी बहुत है। जितनी भक्ति करते हैं शराब देके खर्च कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुर्वासा ऋषि आया, राजा अम्बरीक ने उन्हें उनके चरण धोए, उनकी सेवा की, फूलों की वर्खा की, जो भाव भगत हो सके ज्यादा से ज्यादा की। दुर्वासा ऋषि अहंकार से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, खुश हो रहे। अब व्रत तोड़ने का जब समय आया, राजा अम्बरीक व्रत तोड़ने लगा, तो दुर्वासा जी कहते हैं कि मुझे नदी में स्नान करने जाना है। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि कहते हैं, पंक्ति आ रही है, चरणों दक ले पोख्या पीड़ ओस पराह उपारना ओ उठ नावन नदी सिधाया, चरणों दक ले पोख्या ओ शराब देवन नोताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अम्बरीक जी कहने लगे कि हे दुर्वासा ऋषि जी, आप स्नान करने जा रहे हैं नदी पे, पर समय सिर वापस आ जाना। हाथ जोड़कर बेनती है, क्योंकि वो एक समय होता है जो व्रत रखते से उसे तोड़ने का एक समय होता है। अगर वो समय निकल जाए तो एकादशी की जगह दूसरी दशा आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और राजा अम्बरीक अपने इस नियम में बड़ा पक्का था, धर्म का पक्का था कि अगर यह समय निकल गया तो मेरा धर्म चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त ये नियम होते थे लोगों के। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए, ठीक है मैं समय पे आ जाऊंगा, पर स्नान करते हुए उनके मन में एक ख्याल आया। दुर्वासा जी कहने लगे आज मजा आएगा। ध्यान देना है ऋषि, पर सोच क्या है? दुर्वासा ऋषि मन में सोचते हैं, अगर मैं लेट गया, मैं आज लेट जाता हूं स्नान करके, समय सिर नहीं जाता हूं, वो दशा खत्म हो जाए। अगर तो इसने वो व्रत तोड़ दिया तो मैं जाकर शराब दे दूंगा, मेरे आने से पहले कैसे तोड़ दिया, मुझे शराब देने का मौका मिल जाएगा। और अगर इसने व्रत नहीं तोड़ा तो राजा का धर्म नहीं रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उसका धर्म है, नियम है कि इतने बजे उसने शराब वो व्रत तोड़ना है, मेरे हाथों से ही भोजन लेगा। अब ऋषियों में ऋषि हैं, चले गए सारे ऋषि मुनि, दूसरे भी खड़े हैं, समय निकलते जा रहे हैं। सब ऋषि कहने लगे आप व्रत तोड़ दो, वो लेट हो गए हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत समय लगाएंगे, नहीं आए हैं, आप व्रत तोड़ दो, आपका धर्म रह जाएगा। सब ऋषियों के कहने पर समय निकलता देखकर राजा अम्बरीक ने अपना व्रत तोड़ दिया, दूसरे किसी ऋषि से प्रसाद लेकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अब वो आए और आने लगे, कहा राजन आ, मैं तुझे अपने हाथों से प्रसाद देता हूं। तो राजा कहने लगा कि हे महाराज, हे महापुरुषों, आपने देर कर दी बहुत, हम सब इंतजार कर रहे थे, पर क्योंकि आपने देर कर दी इसलिए मैंने किसी दूसरे महापुरुषों के हाथ से वो प्रसाद ग्रहण कर लिया, व्रत तोड़ दिया।
अब ऋषि दुर्वासा क्रोध में लाल, अत के क्रोध, बहाना मिल गया शराब देने का। कहने लगे राजन तूने मेरी निरादरी की है, मैं ऋषियों में ऋषि दुर्वासा ऋषि, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं तुझे ऐसा शराब देने जा रहा हूं तू अभी के अभी भस्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कुछ नहीं रहेगा तेरा, जल कर भस्म हो जाएगा सबके सामने। दुर्वासा ऋषि ने वो हाथ में करमंडल लेकर जल हाथ में लिया शराब देने के लिए, पर क्या हुआ, दोस्ती किससे की थी, विष्णु भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु राजा अम्बरीक, ये बात याद रखना साथ संगत, ये जो अमृत वेला है ना, जो अमृत वेला उठ के बंदगी करते हैं, नित्यनेम संभालते हैं, कई बार ना हमें नहीं पता होता हमारे पास क्या क्या आ चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें नहीं पता होता अदृश्य शक्तियां हमारी रक्षा कर रही होती हैं, हमारे काम अपने आप कैसे हो रहे होते हैं। इसको छोटा मत समझना। जिसका अमृत वेले का नित्य नेम पक्का, बाबा आनंद सिंह जी के वचन, जिसका नित्य नेम पक्का, ऐसा एक गुरसिक एक मोहल्ले में हो, उस मोहल्ले में एक किसी के घर में, पूरे मोहल्ले में किसी के घर में बुरी आत्मा नहीं आ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम की इतनी महानता है, कोई पक्का नित्यनेमी हो, पक्का नित्यनेमी। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, ये जो रावण है, ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, ये अब तक इतनी देर तक क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि इनके पीछे औरंगजेब इतने लोगों से लड़ा, शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, कितनों से लड़ा, वो आखिर तक कायम रहा इतनी देर तक। क्यों? क्योंकि उसका नित्यनेम बड़ा पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था। औरंगजेब का अगर आप हिस्ट्री पढ़ो ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में लिखी है, औरंगजेब तेरे में इतने गुण। औरंगजेब एक ऐसा शहंशाह हुआ है जिसने कभी भी अपनी प्रजा के पैसे में से 1 पैसा नहीं खाया। टोपियां सीता था, वो टोपियां सीकर बेचता था, जितना धन मिलता था उससे रुकी सुखी जो मिलती थी वो खाता था। वो इतना अपने नियम का पक्का था, 5 वक्त का नमाजी था, इसलिए इसमें इतनी ताकत थी कि इतने लोगों से इतनी देर तक लड़ पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नित्यनेम की बहुत ताकत होती है, जिसका नित्यनेम पक्का, उसकी 1000 गलतियां हो जाए उसे सजा नहीं मिलती। पर कहते थे बाबा आनंद सिंह जी, ऐसा आदमी उस दिन से डरे जिस दिन नित्यनेम छूटेगा, क्योंकि जिस दिन छूटा एकदम सर पे आ जाएगा सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव कि नित्यनेम की ताकत को सही जगह पे इस्तेमाल करो, किसी का बुरा करने में नहीं। और ये क्या कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि, ताकत है भक्ति की, बंदगी की, पर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, शराब देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विष्णु भगवान ये कैसे देख पाते, मित्र बनाया था अम्बरीक ने, और अम्बरीक को पता तक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ भाई, गुरदास जी कहते हैं, चक्र सुदर्शन काल रूप हुए, पिहावल गर्भ गवाया, बामण पन्ना जियो ले, रखनहन देव सवाया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने शराब देने के लिए जल हाथ में लिया, वहां से सुदर्शन चक्र चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के सामने आकर खड़ा हो गया। दुर्वासा घबरा गया, जहां दुर्वासा जा रहा है सुदर्शन पीछे पीछे जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे राज्य, सारे जितने भी लोग हैं, भीड़ देखकर दंग है कि ये क्या हो रहा है। अम्बरीक भी हाथ जोड़कर खड़ा है कि दुर्वासा शराब देके भस्म करने ही वाला है। सुदर्शन चक्र आके खड़ा हो गया सामने। अब इसमें लिखा है कि दुर्वासा सारे देवताओं के पास भागा, हर देवता के पास गया कि मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हाथ खड़े कर दिए। इंद्रलोक शिवलोक तज, ब्रह्मलोक बैकुंठ तजाया, देवते भगवान सुन, सिख दे सबना समझाया। सबने समझाया, अगर तू इस सुदर्शन से बचना चाहता है, हमारी ताकत नहीं इससे रोक दे। अगर बचना चाहता है तो एक ही तरीका है, तूने भगत और उसकी भक्ति की परीक्षा ली है, तूने भगत और उसकी परीक्षा, भक्ति की निरादरी की है। तूने भगत की, विष्णु भगवान के भगत की निरादरी की, उसकी भक्ति की निरादरी की है तूने। जाके अम्बरीक के पांव पड़ जा, अम्बरीक राजा के पांव पड़ जा। अगर वो कहेगा सुदर्शन रुक जा तो सुदर्शन रुक जाएगा, वरना कोई नहीं रोक सकता इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्रता किससे की थी अम्बरीक ने? भगवान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कैसे की थी? अमृत वेले उठ के आधी रात को नाम जपता था राजा अम्बरीक। ये डिटेल में लिखा हुआ है साथ संगत जी। ये बार बार दास इसलिए कह रहे हैं कि किसी का अमृत वेला बन जाए, बन जाए। दास
जहां भी जाता है मकसद एक ही है, एक ही, दूसरा कुछ नहीं, कि अमृत वेला बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मित्रता की थी, श्रवण कीजिए। आए पया शरणागति, मारी दा अमरीक छुड़ाया, भगत वचन जग बिरद सदाया, जग बिरद सदाया। अब दुर्वासा ऋषि जिसके चरण राजा अम्बरीक ने धोए थे, सत्कार किया था, वो दुर्वासा ऋषि जिससे लोग डरते थे, आकर अम्बरीक के चरणों में गिर पड़ा कि सुदर्शन को रोक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा अम्बरीक हाथ जोड़ के खड़ा है कि हे महाराज, आप मेरे पैरों में मत गिरो, ये सुदर्शन को मैं कैसे रोक सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं आया कहाँ से। तब दुर्वासा ने कहा, विष्णु भगवान का सुदर्शन है ये, क्योंकि मैंने तेरी भक्ति की निरादरी की, उन्होंने इसे भेजा है। अब तू बोलेगा तो वो भगवान मानेंगे, नहीं तो मेरी गर्दन कट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। तब अम्बरीक ने हाथ जोड़कर सुदर्शन से कहा कि हे वापस चले जाओ, ये मेरे पूजनीय महर्षि हैं दुर्वासा। तो सुदर्शन एक भगत की बात मानकर वापस चला गया। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मोह है। ये नाम जपने वालों को गुरु ने कितनी बढ़ियाई दी है साथ संगत जी। कहते हैं कि अगर मैं किसी को बांध दूं, मैं किसी को शराब दे दूं, मेरा भगत उस शराब को खोल सकता है, पर अगर मेरा भगत किसी को शराब दे दे, गुरु महाराज कहते हैं मैं नहीं खोल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन सारे गुरु बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको, ऐसा मीत करो सबको, मीत करो सबको। जाते बिरता कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सबको। जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सबको। ऐसा मीत करो सबको, 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 मीत करो सबको। ऐसा मीत ऐसा करो सबको, मीत करो सबको। मीत करो ऐसा मीत करो सबको, सबको। मीत करो सबको। मीत करो सबको, मीत करो सबको। जाते बिरथा कोई न
जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सब कोए। हो जाते बिरथा कोई न होए, जाते बिरथा कोई न होए, मीत करो सब कोए। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ, जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए। चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा, श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जो की शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करख करत हूँ कब हो, मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोझे उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम, भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद संभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा, को पेव न पापन भेदा। तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती। तो पेन पेन तोय तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा। कै कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोरा वकई कोपा। अंडज जेरज से तज कीने। कुछ खान बहो रच देने। कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्ब। अब रक्षा मेरी तुम करो। बार असिक संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर। के दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते है। आके काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट जाय निहरो। आके ताप तनक मोहरो। और तो सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छा सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल पास ते ताए
जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग कीत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाई दुष्ट लोक ते ले बचाई खड़ग कीत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जित कर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे बिनवंद नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता चंगियां बुरियां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया 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 गए
ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਂਦਾ, ਜੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਂਦਾ।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।